हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है मिस्टर CN वेणुगोपालन, आप अच्छे से जानते हैं, द ग्रेट फाइटर फॉर पेंशन अपडेशन। सेकेंड ऑप्शन के लिए भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत था। तो उन्हीं ने एक लेटर लिखा है आज टू मिस्टर पंकज चौधरी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। क्या लिखे हैं डिटेल में देखेंगे, डेटेड 4 फरवरी 2026। तो चलिए देखते हैं वो क्या लिखे हैं उनको। ये देखिए, डिटेल बहुत लंबा चौड़ा है, मैं डिटेल नहीं देखूंगा, इम्पोर्टेंट जो जो पॉइंट है वो देख लेंगे। पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। रिवीजन ऑफ सैलरी एंड पेंशन इन RBI, नाबार्ड एंड पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी with effect from 1st August 2022 and non-revision of pension in state-run bank for past 30 years, as also non-payment of 100% DR utilization to pre-November 2002 bank retirees for the period from 1st May 2005 to 30th 9 2023, making bad use of Supreme Court etc. ये है डिटेल में वो जो लिखे कि पेंशन अपडेशन हुआ है RBI का, नाबार्ड का, प्लस एरियर पेमेंट नहीं किए 100% DN यूटिलाइजेशन का, अब 1st 10 2023 से दिए, लेकिन बाकी इतने साल का पैसा खा लिए। तो इसी के ऊपर वो लिखे, डिटेल में क्या लिखे एक एक करके देखते जाते हैं। ये बात पहले लिखे, ये सब हुआ है जिसके वजह से आपको अपडेट हुआ। अपडेट में आपका खर्चा हुआ है 11,500 करोड़ रुपीज़। ये RBI नाबार्ड का जो अपडेशन में, आज़ादी का अमृत महोत्सव इज हाईली एप्रिशिएबल, बट गिवन दैट द सैलरी टू द एम्प्लॉइज is payable out of the revenue account of the concerned institution and the pension is payable out of the pension fund created out of the CPF employees, one is at loss to know how there can be a cost to the government. पेंशन फंड से जस्ट पेंशन दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट के लिए कैसे कॉस्ट हो सकता है। उसके बाद वो क्या लिखे देखते हैं डिटेल में, एक एक करके देख लेते हैं। पेंशन स्कीम के बारे में बताएं। उसके बाद वो लिखे डियरनेस रिलीफ्स टू पेंशनर्स विल बी ग्रांटेड एट सच रेट एज मे बी डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन लाइन विद द डियरनेस अलाउंसेस फॉर्मूला इन ऑपरेशन इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Provision will be made a scheme to be negotiated and settled between the parties to the settlement by 31st December 1993 for applicability, qualifying service, amount of pension, payment of pension, commutation of pension, family pension, updating and other general condition, etc. on the line एस आर इन फोर्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का पेंशन स्कीम जैसे डिट्टो पेंशन स्कीम पब्लिक सेक्टर बैंक का भी है, मेकिंग इट अनडिस्प्यूटेबल दैट द पेंशन स्कीम इन द बैंक शैल बी एग्जैक्टली ऑन द प्रेमाइज ऑफ द पेंशन स्कीम इन द RBI के लाइन में हमारा पेंशन स्कीम है टोटली। उसके बाद वो लिखे एज यू आर अवेयर the scheme has been introduced on the line of the pension scheme available to the central government employees and employees of the Reserve Bank of India in view of the fact that the entire scheme is patterned on the line of Reserve Bank of India dearness formula. The pension regulation will be as per the provision in the Reserve Bank of India pension regulation. Same to same है, तो हमारा भी पेंशन अपडेशन होना चाहिए। The pension settlement in the bank was arrived at explicitly on the premise that it will be exactly on the line of the RBI pension scheme. The settlement is the bedrock of the pension settlement. And since in the RBI pension scheme the strike clause does not exist and there is no cause for it to be in the pension regulation, and IBA agreed with the view and recommended the government for its deletion. The copy of the settlement dated 10/11/1997, which makes it clear that the IBA agreed that the pension scheme in the bank is exactly on the premise of the pension scheme in the Reserve Bank of India, is attached for your kind information by way of annexure 1. उसके बाद देखिए
इन रेस्पेक्ट 35(1) के हिसाब से, इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1986 but before the 31st day of October 1987, basic pension and additional pension will be updated as per the formula given in Appendix 1. अपेंडिक्स के हिसाब से ये लोगों का पहले मेंशन हुआ था, ये पीरियड से ये पीरियड के बीच में जो लोग रिटायर्ड हैं उनका बेसिक पेंशन, लेकिन उसके बाद उसका अमेंडेड होकर उसको क्या किया गया, पीरियड को हटा दिया गया. बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेर एवर एप्लीकेबल shall be updated as the formula given in Appendix 1. By scrapping the time frame को हटा दिया गया. इसको मतलब क्या है, टाइम फ्रेम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर द पर्पज ऑफ अपडेटिंग बाय इंपोर्टिंग द वर्ड क्या गया, वेयर एवर एप्लीकेबल एंड ऑल्सो बाय रिप्लेसिंग द वर्ड विल बी अपडेटेड. वेयर एवर के लगा गया विद द वर्ड शैल बी अपडेटेड, विल बी अपडेटेड की जगह शैल बी अपडेटेड किया गया. बाय गिविंग एम्फासिस टू द अपडेटिंग ऑफ पेंशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट. इसका मतलब हर सेटलमेंट में अपेंडिक्स चेंज होके उसको पेंशन अपडेशन होना चाहिए था एवरी सेटलमेंट में, लेकिन वो नहीं किया गया है. उसके बाद द मिनट्स डेटेड 26/3/1994, द स्मॉल कमिटी ऑफ IBA हैड एग्रीड दैट, क्या एग्री किया है, द सेटिंग ऑफ द पेंशन फंड इज टू बी डन ऑन सिमिलर लाइन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेंशन रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द RBI employees and central civil service pension rule applicable to central government employees by making suitable modification in relation to its applicability to the banking industry. Formula updating pensions shall be on the line of the same given in RBI pension scheme. Mandate that the fact that the pension scheme of the bank has to be exactly on the premise of the pension scheme of the Reserve Bank of India. अब भी जगह में बोला गया कि हमारे जो पेंशन स्कीम है बेस्ड टोटली ऑन RBI पेंशन स्कीम. Besides regulation, residual provision further state that in case of doubt in the matter of applicability of the regulation, regards may have to be corresponding provision of central civil service को रेफर किया जाए. कोई भी डाउट है तो मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर आपको डाउट है तब रेफर करना है. उसके बाद देखिए डिटेल में क्या है. स्मॉल इधर बोला गया नॉट स्टैंडिंग दैट द सेटलमेंट डेटेड 29/10/1993 17/12/1993 ऑफ IBA टू श्री RN गडबोले को जो लिखे उधर भी लिखा है कि हमारा जो पेंशन है RBI पेंशन के बेसिस पे है. उसके बाद IBA जो है, IBA हैज इशूड लीगल सर्कुलर इशू करके वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, IBA इज नाइदर ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नॉर ए रेगुलेटर एंड नॉट इवन ए सेल्फ एंड रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज़ नो अथॉरिटी ओवर बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस प्लेयर. इट डज नॉट issues direction to bank and financial service player and at time as decided by its member merely facilitated matters of common purpose for its member and even then does not make any decision in such matter. IBA further said that it has no say in any matter given IBA state as clarified above and may not be implemented in any petition along with any member bank and that IBA shall not be made a party in any complaint or litigation to save delay, cost and convenience as stated above, thereby facilitating early disposal of the complaint litigation. IBA का उसका सर्कुलर इशू करके ये सब बता दिया ऑलरेडी. वो IBA बोला कि उनके अगेंस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते. The act of IBA in filing affidavit in the SLP जो फॉल्स एफिडेविट दिए कि पेंशन अपडेशन नहीं है तो उनको कौन सा अथॉरिटी मिला. दिस अपार्ट IBA इज अगेन एंड अगेन सीकिंग एडजर्नमेंट इन द SLP सिविल appeal with a view to delaying the reflecting justice to about 8 lakhs of बैंक पेंशनर्स. बार बार एडजर्नमेंट ले रहे हैं, कोर्ट में फॉल्स एफिडेविट सबमिट कर रहे हैं. उसके बाद वो कुछ केसेस का रेफरेंस दिए हैं जिसके हिसाब से कि पेंशन अपडेशन हमारा होना चाहिए.
As such, decision disallowing the updating of pension in the civil appeal, जो MC Singla case, will be in conflict with what has been delivered by its earlier unless the pension in bank is revised with effect from 1 मार्च 2019, मतलब जो डेट में आरबीआई का हुआ था उसी डेट से हमारा रिवाइज होके इंटरेस्ट के साथ एरियर पेमेंट होना चाहिए. इट विल बी ग्रॉस इनजस्टिस इन बेंच ऑफ द सेटलमेंट एंड पेंशन रेगुलेशन इन फोर्स. नहीं देंगे तो ग्रॉस इनजस्टिस है ये सब. उसके बाद कुछ केसेस का रेफरेंस दिया. उसके बाद वो फंड्स के बारे में बोले हैं. द पेंशन फंड ऑफ बैंक्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टूड एट 4,27,664.13 crores as on 31/3/2024 and 4,56,446 plus 13 crores as on 31/3/2025. All bank can afford to pay the updated pension on the pattern available in RBI out of the annual growth of the fund without any burden to the revenue account or touching the कर्पस ऑफ द फंड. फंड का मेन पैसा को भी छूना नहीं पड़ेगा. उसका जो ईयरली है उसी से सफिशिएंट है और गवर्नमेंट को कोई बर्डन लेना नहीं पड़ेगा. वही डिटेल में वो उसमें बताएं उनको. जो पेंशन फंड है वो सफिशिएंट है हमारा पेंशन अपडेशन के लिए. उसके बाद वो लास्ट में जो रिक्वेस्ट किए हैं वो मैं बता दे रहा हूँ. वो एरियर मांगे हैं जो 100% डी इन्फ्लेशन का जब जिस डेट से है उसी डेट से देना चाहिए. वो पैसा गवर्नमेंट खा लिया. वही बोल रहे हैं अराउंड 2 लाख पेंशनर्स को सफ़र के हैं एरियर नहीं दे के 100% डी न्यूट्रलेशन का pre-2002 रिटायरीज जो हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं. उसके बाद लास्ट में वो रिक्वेस्ट के हैं आई मेक ए fervent appeal to you to kindly look into the foregoing with the attention it deserves and to take expeditious steps to get the wrong so far done rectified soon. In case anything I said is wrong according to you, I may kindly be informed accordingly. अगर मैं कहीं कुछ भूल वहाँ बोला हूँ तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए. यही बात भी वेणुगोपालन जी ने लिखे हैं. थैंक्स एंड रिगार्ड्स योर सिंसियरली मिस्टर सी एन वेणुगोपालन. कॉपी टू MS शालिनी पंडित, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. डिटेल में वो कॉपी भी दिए हैं. तो कोशिश तो रिटायरीज पेंशनर्स अपना कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कैसे पेंशन अपडेशन हो जाए. तो ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू.